بھٹو کے ساتھ بھی شہید لکھا ہے اور بینظیر کے ساتھ بھی شہید لکھا ہے اور اب آپ کے ابو کے ساتھ بھی جو ہے نا شہید لکھا گیا ہے. تسی جانتے ہو میرے نال بھی شہید لکھا جائے. سیاست میں دلچسپی آپ کو میری باتوں سے نظر آ رہی ہوگی. بلاول جو ہے آگے بہت بڑے سرپرائز دے گا عوام کو بھی. اور بلاول سے میں نے شادی کا سوال پوچھا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی عوام کی خدمت کرنی ہے. اس کے بعد اس حوالے سے اب انتظار کرنا ہوگا عوام کو. اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. السلام علیکم. اردو 5 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شگفتہ تسنیم. آج میں آپ کو ایسی اینکر سے ملوا رہی ہوں جس نے بہت سارے انٹرویو کیے لیکن یہ ایسا انٹرویو تھا جس نے اس کو وائرل کر دیا. کیسے وائرل ہوئی یہ مائرہ سے ہی پوچھتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا, اتنا وائرل ہو کے کیسا لگ رہا ہے؟ وائرل میں پہلے بھی بہت زیادہ تھی. میں ٹک ٹاک بھی بہت زیادہ بناتی اور فالوورس میرے بہت زیادہ تھے لیکن اس انٹرویو نے بہت زیادہ وائرل کر دیا اور جس کی بڑی وجہ میمرس تھے. یہ تو مانتی ہے نا کہ اس ویڈیو نے آپ کو زیادہ وائرل کیا ہے. ایگزیکٹلی. یہ مطلب وہ لوگ جنہیں میں نہیں بھی جانتی انہوں نے بھی مجھے یہ ویڈیو بھیجی ہے. اچھا, اس ویڈیو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے آپ کی ویڈیو پہ. بہت ساری جو ہے نا چیزیں کمنٹس وغیرہ سے, یعنی کہ آپ کو اپنی فیملی سے کیا رسپانس مل رہا ہے؟ جو لوگوں کے کمنٹس تھے اس سے ہٹ کے آپ کو فیملی سے کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ دیکھو, لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ایک سکینڈل جو ہے اس کو بنا دینا, لیکن سکینڈل آپ لوگ بناتے رہے جب تک فیملی پروٹیکشن ہے نا تب تک دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی میرا. اور جو نیگیٹو کمنٹس بہت زیادہ کیے گئے شیخ رشید کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے, بھٹو کا نام دے دیا جائے گا مائرہ کو, نہ جانے کیا کچھ کمنٹس غلط جو ہے وہ میرے خلاف ایک پروپیگنڈا رچایا گیا. لیکن میں نے جو کمنٹس دیکھے ہیں وہ تو بڑے یعنی کہ محبت بڑے جو ہیں وہ ایسے ہیں, کچھ رومانٹک ٹائپ کے جو ہے نا وہ کمنٹس ہیں. اچھا, ایک فوٹو میں نا بلاول میری طرف بہت پیار سے دیکھ رہے ہیں تو لوگ اب پتہ نہیں کس نے اسٹیٹس لگایا کہ اب لڑکیاں کہیں گی کہ ہمیں بلاول کے جیسا ہم سفر بھی چاہیے جو ہمیں ایسے دیکھے. اچھا, اس میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ اتنی زیادہ ہوا چل رہی تھی کہ بلاول صاحب جو ہے نا خود کو سنبھال نہیں سکے اور ان کا جو ریئیکشن تھا وہ تو لوگوں نے بھی دیکھا. اس میں کیا وجہ تھی؟ ہوا کی وجہ سے بیسکلی یہ ریئیکشن نہیں آیا تھا. ریئیکشن اس وجہ سے آیا تھا کہ لالا موسم میں برج آ گیا تھا اور جیسے ہی برج آیا ہے تو انہوں نے کہا ہے ڈاؤن ڈاؤن. ظاہری بات ہے برج ہے تو جھکنا تھا سب نے, اور وہ صرف میں اور بلاول ہی نہیں جھکے تھے, تمام جتنے بھی کنٹینر پہ موجود تھے وہ تمام جو ہے نیچے جھک گئے تھے. اچھا, مجھے یہ بتائیں بہت ساری ایسی اینکرز ہیں جن کو ایسا موقع نہیں ملا لیکن آپ ان کے کنٹینر تک چلے گئیں, ایسا کیسے موقع ملا؟ اچھا, وہاں پہ اور بھی کافی لوگوں نے انٹرویوز کیے لیکن سب سے زیادہ میرا وائرل ہوا ہے اور وائرل اس وجہ سے ہو گیا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ ٹرک پہ کس طرح انٹرویو کر رہی ہے اور بلاول اتنے پیار سے کس طرح ڈسکشن کر رہا ہے. پہلے یہ بتا دوں کہ میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ فیملی ریلیشن ہے پہلے بھی, اور سب سے بڑی جو میری پہچان ہے, میں ایک شہید کی بیٹی ہوں اور میرے ابو محمد شفیق گوگا شہید ہے جو 27 دسمبر 2007 کو جو اسلام آباد لیاقت آباد میں بلاسٹ ہوا اس میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. وہاں پہ وہ شہید ہوئے اور پارٹی سے وفاداری کرتے ہوئے اور وفا کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان جو ہے پارٹی کے لیے وقف کر دی. تو یہ اسی کا نتیجہ تھا اور اسی کا ریلیشن تھا. ابو کا نام اب بھی پارٹی میں ہے اور آگے ہم نے اس کو لے جا کر چلنا ہے. تو آپ کو بھی اچھا موقع مل گیا کہ آپ نے اپنے ابو کو جو ہے آپ کی ابو کی نے جتنی محنت کی تھی اور ان کے ساتھ جتنا سپورٹ کیا تھا وہ آپ کو موقع مل گیا کہ آپ بتا سکے کہ میرے ابو بھی جان نثار تھے پیپلز پارٹی پر, اب آپ بھی میرے خیال سے کچھ ایسا ہی ہے. ہاں, انشاءاللہ ایسا ہی ہے جب تک میرا آخری سانس ہے. میرے ابو نے مجھے ہمیں تمام بہن بھائیوں کو صرف ایک بات یہی کہی تھی کہ جینا مرنا پارٹی کے لیے ہے, کبھی بھی پارٹی کے ساتھ دگا نہیں کرنی, وفاداری کا مظاہرہ کرنا ہے. اور وہ لوگ اور ہی ہیں جو لوٹے بن جاتے ہیں, ہم ان میں سے نہیں ہیں. ہم اپنی پارٹی کا ساتھ دیں گے اور ہر محاذ پہ جو ہے صرف جی بھٹو ہوگا. مطلب آپ کو سیاست سے شروع سے ہی دلچسپی ہے؟ سیاست میں دلچسپی آپ کو میری باتوں سے نظر آ رہی ہوگی اس لیے مجھے لگا کہ آپ کو سیاست سے بہت دلچسپی ہے. شروع سے ہی آپ پیپلز پارٹی کے یعنی کہ سپورٹ میں یا کسی اور کو بھی کبھی چانس دینا پڑے تو
देखो, एक तो मेरा पूरा ख़ानदान पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है, पूरा ख़ानदान। और मेरे अब्बू जो है बेशक और मेरे फैमिली रिलेटिव जो है उन्होंने और पार्टियाँ ज्वाइन कर ली, लेकिन मेरे अब्बू की कुर्बानी बहुत बड़ी है और ये एक मिसाली कुर्बानी है जिसे हमने आगे ज़िंदा रखना है। हमने उनका नाम जो है आगे इसी तरह बाहर रखना है और लोगों को पता होना चाहिए शफीक गोगा शहीद की बेटी है। अब भी मैं जिधर भी जाती हूँ ना, तो लोग मुझे जब कहते हैं ना कि गोगे दी बेटी आ गई है, तो वो एक अलग ही रुतबा बढ़ जाता है, एक फ़ख्र महसूस होता है कि हाँ, ये होती है शहीद की वैल्यू। और मेरे अबू शहीद हुए हैं और कहा जाता है शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं, तो उनका हाथ मेरे ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि आपको फ़ख्र इस बात पे भी होता है कि भट्टो के साथ भी शहीद लिखा है और बेनज़ीर के साथ भी शहीद लिखा है और अब आपके अब्बू के साथ भी जो है ना शहीद लिखा गया है। तुसी जानते हो मेरे नाल भी शहीद लिखा जाए। ये तो मुझे आपके जज्बात ऐसे लग रहे हैं। नहीं, देखो, जब हमने अपने मुल्क के लिए काम करना है ना, और जब मैंने कह दिया कि हर महाज पे काम करना है, तो फिर मेरी पार्टी की खातिर और मेरे अब्बू की कुर्बानी की खातिर मेरी जान भी चले जाती है ना, तो वो मेरे लिए एक एजाज़ की बात होगी, फ़ख्र की बात होगी। वैसे अभी तक इस वीडियो के बाद जो है कोई रिस्पॉन्स ऐसा मिला है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से या वैसे मोहब्बत टाइप का कोई रिस्पॉन्स मिले उस साइड से? मोहब्बत का तो नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिली है जॉब के हवाले से, और सिर्फ सहाफ़त के मैदान में नहीं, और भी बाकी पंजाब क़यादत की जानिब से और गवर्नमेंट की जाए, हमारी पूरी गवर्नमेंट की बात कर ले तो उन्होंने कहा कि आप पार्टी, और ये अभी नहीं पहले भी मुझे कहते थे कि आप हमारी अपनी बच्ची हैं तो आप पार्टी को ज्वाइन करें, आपका हक बनते हैं। हाँ, ज़ाहिर बात है हम लोगों ने ये काम करना है, लेकिन उस काम करने का एक वक्त मुकर्रर किया गया है और मेरा एम्बिशन बहुत बड़ा है। मैंने पार्टी के लिए बहुत काम अच्छे अच्छे सर अंजाम देने हैं, तो बिलावल की जानिब से, बिलावल मेरे भाई हैं, उनकी जानिब से जो जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी उसको बाखूबी निभाऊंगी। अच्छा, मैंने कुछ वीडियोस में आपको सुना है कि आपने ये बताया है कि हमारी फ़र्स्ट टाइम ऐसी पर्सनल बातें हुई हैं, पर्सनल हमारी जो है ना डिस्कस हुई है, तो वो पर्सनल क्या बातें हुई थी, कुछ हमें भी शेयर करें। अच्छा, एक बतौर सहाफ़ी होने के नाते मेरी पहले भी बिलावल से मुलाकात हुई है और वो सिर्फ वो इस वजह से हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात जो है वो किए जाते हैं और मेरे साथ काफ़ी सहाफ़ी भी होते हैं, तो मैं अपनी टीम को छोड़ के अकेली जो है उनसे बात नहीं कर सकती क्योंकि वो अगेंस्ट हो जाता है। और बिलावल से जो बातें हमारी पर्सनली बातें हुई वो फैमिली के रिलेटेड ही थी और उन्हें मैंने बताया था कि मेरी फैमिली जब तक है वो आपको सपोर्ट करेगी, कहीं पे भी आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि मेरे अब्बू की जो कुर्बानी है और उसे इस चीज़ का फ़ख्र महसूस हो रहा था कि एक शहीद की बेटी मेरा इंटरव्यू कर रही है और वो मुझे बार बार सिर्फ थैंक यू मतलब एक खुशी की। और आपने एक चीज़ ये भी महसूस की होगी कि जब उनकी वालदा का जिक्र आता है, बेनज़ीर का जिक्र आता है, उनके फेस एक्सप्रेशन मुकम्मल चेंज हो जाते हैं। तो कोई भी किसी की वालदा ना हो या किसी का बाप ना हो ना, तो जब उनके पेरेंट्स की बात आती है ना तो ये इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है। अच्छा मायरा, वैसे आप क्या करती हो? मैं जर्नलिस्ट हूँ और न्यूज़ और लाहौर न्यूज़ चैनल में बतौर पॉलिटिकल बीट रिपोर्टर जो है अपने काम सर अंजाम दे रही हूँ। सहाफ़त में आने का कैसे शौक़ हुआ? मेरी एक बहुत क्रिटिकल स्टोरी है। पहले मैं कॉलेज लाइफ में स्पोर्ट्स में थी और स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस की प्लेयर थी, गोल्ड मेडल भी है मेरे पास, सर्टिफिकेट्स भी बहुत ज़्यादा है, जिमनास्टर भी हूँ, बाइक राइडर भी हूँ, ना जाने क्या कुछ नहीं कर लिया मैंने। ऐसी कोई ख्वाब क्या था? ख्वाब मेरा जो है वो, मैं बचपन में ना बहुत ज़्यादा माइक पकड़ के ना ऐसे ही घर में हेडलाइंस पढ़ लेती थी, तो वो मुझे नहीं पता था कि ये कंप्लीट हो जाना ख्वाब। फ्यूचर में यही बनूंगी। हाँ, फ्यूचर में यही बन जाऊंगी। और पहले मैं गई ये लॉयर्स की फील्ड में गई और वकील बनने लगी थी, लेकिन वकील बनते बनते ऐसे दिल उठ गया और सहाफ़त के मैदान में आ गई। तो जैसे ही मुझे न्यूज़ से कॉल आई देन मैंने कहा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी अचीव करना चाहिए है। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो एक्सपीरियंस मिलता गया। इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता है, लेकिन मुझे न्यूज़ से बहुत एक फैमिली इन्वायरमेंट है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और मेरे उस्ताद जो मेरे ब्यूरो फयाज हो गया उन्होंने मुझे मौका दिया आगे आने का। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इवेंट नहीं होगा, कोई बड़ा इवेंट नहीं होगा जहाँ पे मेरा नाम नहीं लेते होंगे कि ये मायरा से कवर करवाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको यानी कि आप ऐसा कोई काम नहीं जो आपने नहीं किया होगा, कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा काम हो जो मैंने नहीं किया, मुझे वो करना चाहिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई ख्वाब अधूरा नहीं रह गया और तमाम ख्वाब मेरे जो है वो उनकी ताबीर हो रही है और अच्छे से हो रही है। अच्छे लोग जो है वो टिकटॉक से हिट होते हैं, सोशल पेजेस से एक्टिव जो है वो हिट हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने बीट के बलबूते पे अपने चैनल के तवसत से और इसके साथ साथ एक अपने मुकाम जो मेरा काम और एक आपका जो है जैसे पीपल्स पार्टी है आपके यानी कि दिल में बसी हुई है,
उनसे आप जो यानी कि इतनी ज़्यादा वायरल हुई हैं, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है ना? मेरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स भी पीपल्स पार्टी के लोग ही हैं। पाकिस्तान के तमाम लोग जो पीपल्स पार्टी में इस वक्त मौजूद है, उन सब ने फॉलो किया हुआ है और तमाम लोग ही बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अवामी पार्टी है, ख़वातीन को बड़ी इज्जत दी जाती है इसमें। अच्छा, जब आपके अब्बू की डेथ हुई तो ज़ाहिर बात है वो बेनज़ीर पे जान निसार करके इनको यानी कि शहीद हुए हैं, तो उनकी तरफ से आपको कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिला पीपल्स पार्टी की तरफ से, या कुछ होता है ना कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती है, कुछ ऐसा हुआ? पार्टी ने सपोर्ट तो किया था और मुझे इतनी तब होश नहीं थी, मैं बहुत छोटी थी और मेरी बहनें बड़ी थी माशाल्लाह से। हम लोग 8 बहन भाई है, 5 बहनें 3 भाई है और माशाल्लाह मैं सबसे छोटी हूँ, तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं थी। उस टाइम कैसे हालात थे वो तमाम बहनों को पता है, फैमिली को पता है, लेकिन मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने कभी हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। इवन मैं अब जैसे बड़ी हुई हूँ, लाइक मीडिया जब से ज्वाइन किया तब से मार्केट जाना ज्वाइन किया। मैंने मार्केट जाती हूँ, अपनी शॉपिंग करती हूँ और बता मेरे तमाम कपड़े वगैरह, तमाम शॉपिंग, हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी बहन की होती थी और मेरी बहन तमाम ख्वाहिशात जो है वो हमारी पूरी करती है। आपके अब्बू के बाद आपके जो है जैसे पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, उनके पीछे जानिसार थे, तो आपके भाइयों में कोई ऐसा वो चीज़ थी जिन्होंने अपने अब्बू की जगह ली हो? क्योंकि अब आपको मौका मिला, वो ज़ाहिर बात है अब आप उस चीज़ को जो है ना आगे लेके जा रही हैं, लेकिन ये तो काफ़ी टाइम हो गया ना, काफ़ी डिस्टेंस के बाद ये चीज़ हुई है, लेकिन आपके अब्बू के बाद आपके भाई वगैरह किसी ने की तरफ नहीं किया? अब्बू की तमाम तरफूबियाँ मुझे लगता है कि मेरे में आ चुकी है और कोई ना कोई बच्चा ऐसा ज़रूर होता है, इसीलिए बिलावल से जो है ना फेमस हो गई है। हाँ, इसीलिए फेमस हो गई हूँ। देख ले, पीपल्स पार्टी के ज़रिए ही फेमस हुई हूँ, जिसे मैं पसंद करती हूँ। और पार्टी बिलावल को पसंद करती हैं सियासत? बड़ा सोच के तुझे जवाब है। मैं पीपल्स पार्टी को पसंद करती हूँ, मेरी अपनी पार्टी है, तो पार्टी के हवाले से जितनी यहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट, कंफर्ट जोन फील होता है ना, वो किसी और पार्टी में जाकर नहीं मिलता। कोई एक अचीवमेंट मुझे कोई बता दे कि ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है तो फिर मैं उसको सपोर्ट भी करती हूँ, लेकिन कोई ऐसा उनका काम नहीं होगा। जिस तरह भुट्टो ने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एडमी ताकत दी, बहुत कुछ किया पाकिस्तान के लिए, बेनज़ीर ने इतना कुछ किया, तो उनकी तरह जो है इमरान खान अब तक कुछ नहीं कर पाया, तो इसीलिए यू टर्न जो लेते हैं उनका तो साथ बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे बेनज़ीर ने किया, भुट्टो ने किया था, तो इसी तरह अगर बिलावल आ गए तो बिलावल भी कुछ ऐसा करेंगे, लगता है आपको? मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है, और लगता ही नहीं है, इस पर मैं डटी हुई हूँ, क्योंकि बिलावल में तमाम खूबियाँ जो है वो अपने नाना के जैसी है। कभी आप उनसे मिले तो आपको एक झलक नज़र आएगी भुट्टो की, और वो इतने नफीस इंसान है, इतने अच्छे हैं कि वो हर बात को समझते हैं और हर बात का इतना अच्छा जवाब देते हैं ना कि वो एक काबिल तारीफ़ कहूँ तो वो कम ना होगा। ज़ाहिर बात है, एक अकीदत होती है, एक मोहब्बत होती है ना पार्टी के साथ, तो आपको इतनी अकीदत है, इतनी मोहब्बत है, तो आपको तो उनकी बहुत सारी खूबियाँ नज़र आ रही होंगी। कुछ ऐसा लगा होगा जैसे आपके अब्बू ने जो बहुत सारी खूबियाँ बताई, उससे हट के कि नहीं ये तो हमें पता ही नहीं था कि इनके अंदर ऐसी खूबियाँ भी हैं, ऐसी कोई है आपको फील हुई? लीडर है वो एक, और मेरा लीडर है, मायरा हाशमी का लीडर है, तो वो कैसे ना अच्छा होगा। मैं अच्छी हुई तो मेरा लीडर भी अच्छा है, और मेरे लीडर को बहुत चाहने वाले तमाम लोग हैं, पार्टी के लोग, पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं बिलावल से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, और जब भी उससे मिलते हैं ना तो उन्हें माजी याद आ जाता है। बहुत सारी वैसे लड़कियों के फेवरेट हैं, वैसे तो बिलावल जो है ना बहुत सारी लड़कियों के फेवरेट है। मैं सोच रही हूँ अगर वो आगे वज़ीर आज़म बन के, तो फिर तो लड़कियाँ उनकी कैसे उनको टाइम मिलेगा कि लड़कियों के मसले वगैरह हल करेंगे या मुल्क के? उनके लिए हम हैं, उनके हल करवाने के लिए। और बिलावल जो है आगे बहुत बड़े सरप्राइज़ देगा आवाम को भी। और बिलावल से मैंने शादी का सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी आवाम की खिदमत करनी है, इसके बाद इस हवाले से अब इंतज़ार करना होगा आवाम को। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने मायरा की बातें सुनी कि उस वीडियो के पीछे असल स्टोरी क्या थी। तो हमारी बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अपनी बहुत शुक्रिया इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।